Question is saying the dissolving of an ionic compound in water is accompanied by an energy change, the enthalpy change of solution. So what was the definition of enthalpy change? When 1 mole of an ionic compound is dissolved in sufficient water to give aqueous ions. So here we have magnesium chloride in solid form dissolved into water to form Mg2 positive aqueous ions and chloride -1 aqueous ions. Describe in terms of bond breaking and bond making what happens to the solid ionic lattice when an ionic compound dissolves in water. So ionic bond जब dissolve होगा तो what sort of bonds will break? Ionic bonds will break. और जो bonds form हो रहे हैं वो form हो रहे हैं between ions and water molecules. उन bonds को हम क्या बोलते हैं? अच्छा आंसर करो. The bonds formed between ions and water molecules are known as ion dipole bonds. ठीक है, ये नाम याद रखो आप. The partial negative of oxygen will make a bond with positively charged sodium ion, and partial positive of hydrogen in water will make a bond with chloride negative ions. ऐसा ही होगा ना. जो सोडियम क्लोराइड के बीच में जो आयनिक बॉन्ड था वो किसने ब्रेक किया? वाटर मॉलिक्यूल्स ने. वाटर मॉलिक्यूल्स अपने बॉन्ड बना लेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम आयंस के साथ अलग बना लेंगे और क्लोराइड आयन के साथ अलग बना देंगे. क्लोराइड आयन के साथ H पॉजिटिव आयंस और वाटर पार्शियल H पॉजिटिव आयन जो है वाटर मॉलिक्यूल के वो बॉन्ड बना लेंगे एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज आयन एंड डाइपोल बॉन्ड बिकॉज हाइड्रोजन पे डाइपोल्स है और क्लोराइड इज एन आयन, कंप्लीट आयन. सिमिलरली सोडियम इज एन आयन और ऑक्सीजन पे जो है वो डाइपोल. तो जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं दोज आर आयन डाइपोल बॉन्ड और जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो जो आयन्स है आपके आयनिक लैटिस में, इसमें मैंने जो एग्जांपल ली है वो सोडियम और क्लोराइड आयन के लिए. बट क्वेश्चन में इन्होंने मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन लिया हुआ है तो हम लोग मैग्नीशियम आयन कर देते हैं सोडियम की जगह पे. राइट, तो यू हैव टू राइट दिस आंसर फॉर 2 मार्क्स. क्या लिखोगे इसमें? कह रहे हैं डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग. तो आयनिक बॉन्ड्स between magnesium ion and chloride ion are broken in ionic lattice and ion dipole bonds are formed between hydrogen partial positive and oxygen partial negative of water with Mg2 positive ions and chloride ions. ठीक है भाई, कोई सवाल इसमें, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े. ओके गाइस, बेटा गो अहेड दोगे तो हम आगे पढ़ेंगे. इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू आस्क ताकि हम इसको सॉर्ट करके आगे बढ़े. एहसन, आमना, वेमरा, आयशा, इल्सा, दानियाल, एजाज, सामिया, वरीजा एंड फरहान. ऑल गुड? ओके. Okay, definition of enthalpy change of solution. So it is an enthalpy change. You have to write it for 1 mark. So it is an enthalpy change when 1 mole of a ionic compound or 1 mole of a substance dissolves into water to form aqueous ions. It is an enthalpy change
when 1 mole of a substance is dissolved in sufficient water to form aqueous ions. Got it? आगे बढ़ें. So your part B2 is use the following data to calculate the standard enthalpy change of hydration of chloride ions. You may find it helpful to construct an energy cycle. अच्छा, we learned how to link enthalpy change of hydration, lattice energy and enthalpy change of solution. हमने एक हैसेस लॉ का साइकिल बनाया था. Using the equation हम इसको लिंक कर सकते हैं. तो ऊपर इक्वेशन गिवन है, that is magnesium chloride in solid form. इसको इन्होंने क्या किया है, देखो ये इक्वेशन है हमारे पास. MgCl2 solid form में, it is dissolved into water to form Mg positive aqueous ions and Cl negative aqueous ions. This particular type of enthalpy change is known as enthalpy change of solution, right? By the definition of enthalpy change of solution, it is an enthalpy change when 1 mole of a substance, that is your ionic compound here, magnesium chloride, जब ये पानी में dissolve होगा to form aqueous ions. तो देखो aqueous ion बने हुए ना दोनों के, magnesium ion aqueous ion अलग हो गया, Mg2 positive ion और chloride aqueous ion. So this is your enthalpy change of solution. लैटिस एनर्जी की अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करें तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है व्हेन 1 mole of an ionic compound is formed. The ionic compound we are dealing with is magnesium chloride. So when 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions, like Mg2 positive gaseous ion and Cl negative gaseous ion, when they get together they form MgCl2 solid. तो ये हमारे पास थी लैटिस एनर्जी. अब अगर मुझे इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की इक्वेशन तो बन गई, अब इसी इक्वेशन को किसी तरह हमें मर्ज करना है विद लैटिस एनर्जी एज वेल एज इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन. तो अब इस इक्वेशन में कहीं पे भी गैसियस साइंस नहीं लिखे हुए. तो अब अगर हम गैसियस साइन नीचे लिखते हैं, लाइक Mg2 पॉजिटिव का गैसियस साइन एंड Cl नेगेटिव का गैसियस साइन, राइट. अच्छा, अब from this, if we dissolve these gaseous ions into water, the Mg2 positive gaseous ion aqueous solution में dissolve होके it will form Mg2 positive aqueous ion. ये हमारे पास हो जाएगी enthalpy change of hydration of Mg2 positive ions. Similarly, chloride ion को water में dissolve करोगे, gaseous chloride ion को water में dissolve करोगे to form aqueous chloride ion, so that would be your enthalpy change of hydration of chloride ions. और यही तो आपको निकालनी है. देखो hydration of magnesium ion is given -1952. You have to find the hydration of chloride ions. अच्छा, what about enthalpy change of solution? It is given, जो कि आपकी मेन इक्वेशन में है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -155 किलोजूल्स पर मोल. Hydration of magnesium ion is also given. You just have to take care of the balancing of the equation. Equation balance नहीं है. Left hand side पे we have 1 mole of magnesium chloride, तो right hand side पे 2 mole of chloride ion आएगा. तो hydration of chloride ion इस हैसेस साइकिल में 2 मोल है, तो 2 into hydration of chloride ions होगा. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और लैटिस एनर्जी क्या होगा when 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ion. तो जो गैशियस मैग्नीशियम आयन और गैशियस क्लोराइड आयन मिलके ये क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड. तो ये हमारी लैटिस एनर्जी होगी. दिस इज डेल लेट ऑफ MgCl2 और ये भी गिवन है आपके पास. इट्स वैल्यू इज
-2524 किलोजूल पर मोल। नाउ यूज द हैसेस साइकिल जो आप वहां पे पढ़ते हो एएस में। जैसे भी आप ऐड करना सीखा हुआ है आपने वैसे ही ऐड करो उसको। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लेटिस एनर्जी का एरो है वो ऊपर जा रहा है, और जो हमारा रूट है वो लेफ्ट हैंड साइड से नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसकी जो भी वैल्यू होगी हम साइन अपोजिट करके ले लेंगे उसका। मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना, माइनस डेल एच लेट प्लस हाइड्रेशन ऑफ, अब दोनों आयंस की हाइड्रेशन अलग अलग ऐड होगी। ठीक है, हम गलती यहाँ पे यही करते हैं कि एक ही आयन की हाइड्रेशन ले लेते हैं। हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन अलग होगा, हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अलग होगा, इक्वल्स टू enthalpy change of solution. We have to find hydration of chloride ion, ये आपको निकालना है यहाँ से बस। बाकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, इक्वेशन में रखो। लैटिस एनर्जी की वैल्यू जो है वो है -2524। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज -1925 प्लस हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज -155 किलोजूल्स पर मोल। क्या बन रहा है आंसर? अच्छा, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइंस हैं, तो यहाँ पे मेक श्योर कि यू राइट 2, अदरवाइज गलत हो जाएगा सब कुछ। जी भाई। ओमेम्ब्रा सबका -377 आ रहा है बच्चे। बेटा कैलकुलेट जरूर किया करो। यूजुअली ये होता है कि मार्क फाइनल आंसर का 1 मार्क होता है। आप इक्वेशन तो सही लिखते हो लेकिन कैलकुलेट गलत कर देते हो, इसलिए अगर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस के साथ तो एग्जाम में जाके गलत होगा। डिवाइड नहीं किया था। दिस इज -377 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा जी, अभी मुझे बताओ कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो ताकि मैं रिपीट कर दूं। चले आगे। ऐसे लॉ में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलो बेटा, ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैंने आपको बार बार कहा था ये चैप्टर पढ़ाने से पहले के जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। यू कैन सी 4 मार्क्स फॉर पार्ट सी, जो कि आपका फिक्स्ड आंसर है, वो हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है, याद भी किया हुआ है। ठीक है, 4 मार्क्स तो आपको वहां से वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, ये 2 मार्क्स का थ्योरी का पार्ट एक और है जो कि एक्सप्लेनेशन देनी है, उससे ऊपर आपको ऊपर 1 मार्क की डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो बहुत इजी चैप्टर है ये, अगर इसमें आप सारी चीजें सही से प्रॉपरली याद कर लोगे तो बहुत इजी मार्क्स स्कोर करोगे। Part 3 is the enthalpy change of hydration of sodium ion, and hydration of sodium plus 1 gaseous ion is -410 kilojoules per mole. Okay. Suggest an explanation for why the hydration for the sodium ion is less exothermic than the hydration of magnesium ion. Hydration enthalpies are always exothermic.
बिकॉज हाइड्रेशन इंथैल्पी में क्या होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस आइन, जो भी आपके पास गैसियस आइन है वो वाटर में डिसॉल्व होता है और एक्वा साइन बनाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका किसी भी किस्म की बॉन्ड्स नहीं है, तो देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, देयर इज ओनली बॉन्ड मेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और जो बॉन्ड मेकिंग है वो किस चीज की है, सोडियम गैसियस आइन जो है वो वाटर के साथ, ऑक्सीजन जैसे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो वो वाटर के साथ आयन डायपोल बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस। तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड मेकिंग है राइट हैंड साइड पे, देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी रिलीज ही होनी है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पीज आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब जिस आयंस के साथ ये आयन डायपोल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसमें हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और दैट वुड बी मोर एक्सोथर्मिक। तो बस आपसे वो ये पूछ रहा है कि व्हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन इज लेस एक्सोथर्मिक देन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन पे जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है। बेसिकली हम जब हाइड्रेशन एंथैल्पीज की बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कब बनेगा, जब चार्ज ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा, इन शॉर्ट जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप अलग अलग चार्जेस की बात भी कर सकते हो और क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी की भी बात कर सकते हो, साइज की भी बात कर सकते हो, बट द बिग डिफरेंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड सोडियम आयन इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। सोडियम आयन पे +1 चार्ज है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, मैग्नीशियम आयन पे +2 चार्ज है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो जो आयन डायपोल बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। जब आयन डायपोल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा तो हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम आयन की मोर एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है। अच्छा अब देखो एक बात, जब आप इसकी मार्किंग की देखोगे ना वहां पे कहीं भी आयन डायपोल बॉन्ड का नाम नहीं लिया हुआ है। लेकिन अब जो है ना सिलेबस में आयन डायपोल बॉन्ड का आफ्टर 2022 नाम जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो मेक श्योर कि आप जो है वो नाम जरूर लिखो आयन डायपोल बॉन्ड का। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, समझ आ गया, आंसर लिख दूं उसका? Mg, 2 positive ion has a higher charge than सोडियम +1 है। ठीक है, and has a smaller radius, क्योंकि across the period we know that atomic size decreases तो ionic radius भी decrease होगा, so it has a higher charge density hence ion dipole bond formed is more stronger। क्लियर है? प्रॉब्लम किसी को कोई, या आगे बढ़े? चलो, next part is describe and explain how the solubility of group 2 sulfates varies down the group। बच्चे ये हमने 4 आंसर्स ना क्वेश्चंस बनाए हुए हैंड आउट में जिनको हमने याद भी किया हुआ है, समझा हुआ भी है। अगर समझ नहीं भी आए थोड़ा बहुत 19-20 हो तो मेक श्योर कि आपको वो प्रॉपर याद हो। जैसे ट्रेंड ऑफ solubility of group 2 sulfates down the group and group 2 hydroxides down the group, ये दोनों आपको याद रखने हैं। and thermal stability of group 2 metal carbonates and group 2 metal nitrates down the group। ठीक है, यूजुअली ये पूछ रहा होता है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं और ये 4 मार्क्स के हैं। अब आपके पास पता है इसका आंसर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, सेम आंसर ही आना है। ठीक है, तो क्या याद किया हुआ है हमने, solubility ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पहले आपको डिस्क्राइब करनी है कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है, 1 मार्क तो यही मिल जाएगा।
solubilities solubility of group 2 sulfates decreases down the group. ठीक है, फिर हमने क्या याद किया हुआ है? एज लैटिस एनर्जी, इसका सिंबल भी लिख सकते हो डैश लैट, एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी both decreases but the decrease in hydration enthalpy is greater. हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज हो रही होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, जिसकी वजह से एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक। ये हमने इक्वेशन बना के एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश की थी, बट अगेन इसका बेटा एक्सप्लेनेशन कभी भी चेंज नहीं होना है, वो सेम ही रहेगा, तो आप याद जरूर रखो उसको। सो एंथैल्पी change of solution becomes less एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जितना लेस एक्सोथर्मिक होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है, आगे बढ़ें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। यूजिंग silver sulfate as an example, complete the following Hass's law energy cycle relating the lattice energy, enthalpy change of solution and hydration enthalpy। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया। On your diagram include the relevant species। species means अगर कोई आइन है या एटम है या मॉलिक्यूलर आइन है, जैसे सल्फेट आइन जो है ना वो एक मॉलिक्यूलर आइन है, तो मॉलिक्यूलर आइंस हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे या आइंस हो जाएंगे, उनको कलेक्टिवली हम केमिस्ट्री में स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज में फ्री रेडिकल्स भी इंक्लूड हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल्स भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स भी आ जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, एएस ऑर्गेनिक में सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। लेबल ईच एंथैल्पी चेंज विद इट्स अप्रोप्रिएट सिंबल। अगर वो गैसियस है तो जी लिखना है, एक्वस है तो एक्यू लिखना है। Complete the remaining two arrows showing the correct direction of enthalpy change। ठीक है, साइकिल कंप्लीट करना है बस आपने। They have already given you silver sulfate, oh sorry, silver sulfate in solid form। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सिल्वर आइंस लिख दूं, गैशियस आइंस ऊपर वाले बॉक्स में, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव गैशियस आइंस, बैलेंसिंग के लिए सिल्वर के साथ 2 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास एनर्जी चेंज बनेगा व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स, ये क्या है? गैसियस आयन। तो इस एंथैल्पी चेंज को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। ये हमारे पास हो जाएगी लैटिस एनर्जी। यहाँ पे आप डेलेच लेट लिख दो, स्टैंडर्ड लैटिस एनर्जी। अच्छा, फिर बाकी क्या बचा? हाइड्रेशन एनर्जी भी लगाना है, सोल्यूशन भी लगाना है। तो सोल्यूशन के लिए गैसियस आयन से एक्वस आयंस बनते हैं। अब गैसियस आयंस आपके पास, सॉरी, हाइड्रेशन के लिए गैसियस आयन से एक्वस आयन बनते हैं। तो जो गैसियस आयन दिए हुए हैं उससे अगर आपको एक्वस आयन बनाना है, लेट्स से सिल्वर का
एक्वा साइन बनाना है और सल्फेट का एक्वा साइन बनाना है। तो ये वाली जो इंथैल्पी चेंज हो जाएगी हमारे पास हाइड्रेशन इंथैल्पीज हो जाएंगी फॉर बोथ सिल्वर आइंस प्लस सल्फेट आइन। ठीक है, दोनों की अलग अलग लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमने गैशियस आइन से एक्वस सिल्वर आइन बना लिए और सल्फेट गैशियस आइन से एक्वस आइंस बना लिए। तो दिस इज enthalpy change of hydration from gaseous ions to aqueous ions. अब ये हाइड्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस भी है इसमें, प्लस दिस इज ऑल्सो द इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सल्फेट आइंस। दोनों साथ लिख दो या अलग अलग एक ही लिख दो, क्योंकि वो जनरल बात पूछ रहा है कि ये कौन सी इंथैल्पी है, तो दैट इज अ हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या रहेगा इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन? इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनती है? व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म एक्वस आइंस। अब एक्वस आइंस तो हमारे पास ये हमने बना लिए ना ऑलरेडी, यहाँ पे एक्वस आइंस हो जाएंगे और ये आयनिक कंपाउंड है। तो ये वाली जो इंथैल्पी चेंज है हमारे पास, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म एक्वस आइंस, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। सारी स्टैंडर्ड लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ ये काम करने के 4 मार्क्स हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। आप लोगों ने खुद से ये क्वेश्चंस ट्राई करे वर्कशीट के, और अगर करे हैं किसी ने और कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन में तो वो पूछ लो, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं ना इसमें रह जाएंगे, वो सारा आपका होमवर्क है, हर हाल में करने हैं आपको। कुछ बच्चे ना ये गलत बना देते हैं, क्योंकि ये ओ लेवल में पढ़ी होती है आयनिक बॉन्डिंग। स्ट्रोंशियम क्लोराइड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रेड कलर इन फायरवर्क्स। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर स्ट्रोंशियम क्लोराइड, शो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली। याद है कैसे बननी थी ये? स्ट्रोंशियम इज फ्रॉम ग्रुप 2, so it will lose 2 electrons. Now it will be left in this second last shell will become its outermost shell now. देखो लास्ट शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए लास्ट शेल, तो उसका जो सेकंड लास्ट शेल है वो अब बैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल बन जाएगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उस पर चार्ज क्या आ जाना है? 2 पॉजिटिव। क्लोरीन ऑन दी अदर हैंड हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, and it will gain 1 electron from the strontium atom. इस पे चार्ज आ जाएगा -1, बट देयर आर 2 क्लोराइड आयन इन द फॉर्मूला ना, तो क्लोराइड के बाहर हम ऐसे 2 लिखेंगे, या 2 क्लोराइड अलग अलग बनाओ या बाहर 2 लिख दो, एक ही बात है। अच्छा जी, ये इसका पार्ट 2 होमवर्क में करना। लैटिस एनर्जी के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं वैसे। ये भी लैटिस एनर्जी क्या खुद करोगे या मैं करवाऊं? लैटिस एनर्जी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करो अभी वाले क्वेश्चन। एहसन, आमना, वैमरा, आयशा, जल्दी बेटा आंसर करो। कर लोगे खुद या मैं करवाऊं लेटेस्ट एनर्जी का कोई और क्वेश्चन? ओके, ट्राई करना फिर। इसका ये वाला आंसर बता दो। अच्छा बस पार्ट 3 का, हाउ माइट दी लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लेड टू क्लोराइड? दिस इज लेड टू क्लोराइड, लेड चार्ज मस्ट बी 2 पॉजिटिव बिकॉज क्लोराइड इज -1, दिस इज PbCl2, compared to that of lead 2 bromide. Again the lead ion is Pb2 positive and bromide ion is -1. Explain your answer.
लैटिस एनर्जीज आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइंस होते हैं हमारे पास वो गैसियस आइंस होते हैं, राइट हैंड साइड पे वी हैव सॉलिड आयनिक कंपाउंड, तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो लैटिस एनर्जीज आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो मोर एक्सोथर्मिक किसकी होगी वो ये पूछ रहा है इन शॉर्ट। lattice energy of PbCl2 is more exothermic। ठीक है, और रीजन क्या है उसका, बिकॉज क्लोराइड आइन हैज अ स्मॉलर रेडियस देन ब्रोमाइड आइन। क्लोराइड आइन has a smaller radius than bromide ion, hence greater charge density and stronger ionic bond। हाँ, you can also write greater force of attraction, stronger ionic bond, greater force of attraction लिख दो, it's okay। क्वेश्चन 19 खुद करना एएस वाला है, इंथैल्पी चेंज निकालना है आपको हेसेस लॉ लगा के। बाकी क्वेश्चन 20 खुद करना, हाइड्रेशन और सोल्यूशन के बारे में सारी बातें ही हो गई हैं तकरीबन। इसका क्वेश्चन 19 का पार्ट बी देख लेते हैं जरा, डिफरेंट है ना थोड़ा सा, सॉरी क्वेश्चन 20 का पार्ट बी देख लेते हैं जरा। इसमें कह रहा है द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड is represented by the following equation. Solution is when 1 mole of a substance is dissolved into water to form aqueous science. Describe the simple apparatus you could use and measurement you would make in order to determine the value of enthalpy change of solution in the laboratory. तो इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन जो होती है वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, क्योंकि बेटा इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आयनिक बॉन्ड जो है उसकी ब्रेकिंग हो रही है, आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, और राइट हैंड साइड पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आयन डाइपोल बॉन्ड। आयन डाइपोल बॉन्ड राइट हैंड साइड पे बॉन्ड मेकिंग हो रही है उसकी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों है वो एंडो या एक्सो दोनों हो सकता है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपको याद भी रखना है कि वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अच्छा, तो किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। डिस्क्राइब द सिंपल apparatus you could use and the measurements you would make। apparatus भी बताना है और जो मेजरमेंट नोट करोगे वो भी बतानी है, और किस तरह से कैलकुलेट करोगे वो भी बताओगे। देखो, किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला देखा था एएस में वो ये था कि जो भी हीट एनर्जी एक्सचेंज है डिवाइडेड बाय क्या करना होता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। और हीट एनर्जी एक्सचेंज निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला देखा था, वो था mc डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड जो कि आपने डिसॉल्व करवाया है। तो इसका आयनिक कंपाउंड जो आप डिसॉल्व करवाओगे इसका आप मास मेजर करोगे। एक पॉलीस्टाइरीन कप में, हमने पॉलीस्टाइरीन कप इसलिए लिया था क्योंकि वो इंसुलेटर था। एक पॉलीस्टाइरीन कप में आप क्या करोगे, वाटर लोगे ऑफ नॉन वॉल्यूम, ठीक है, उसके अंदर आप मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड करोगे ऑफ नोन मास, जो भी मास मेजर किया है आपने, और उसके अंदर आप डाल दोगे एक थर्मोमीटर, ठीक है। अब थर्मोमीटर का इनिशियल टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड किया हुआ होगा बिफोर एडिंग द मास, और
आफ्टर डिसॉल्विंग दी मैग्नीशियम क्लोराइड आप फाइनल टेम्परेचर उसका रिकॉर्ड करोगे, या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या वो डिक्रीज हो रहा होगा। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो मींस डिसॉल्विंग और इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज एक्सोथर्मिक, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो एंडोथर्मिक है। देखो इस तरह से लिखेंगे इसको, एड आर नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर into a polystyrene cup, record the initial temperature of water by a thermometer, add a measured या बल्कि इसको add a known mass of magnesium chloride solid and dissolve it completely, completely dissolve होना जरूरी है। ठीक है, तो आप साथ साथ अपैरेटस भी लिख रहे हो, प्रोसीजर भी लिख रहे हो, और जो वैल्यूज आपको मेजर करनी है वो भी लिख रहे हो। ठीक है, रिकॉर्ड द टेम्परेचर चेंज, राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, जो भी है आपको तो नहीं पता ना कि इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है अभी। ठीक है, तो आपने रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, एंड कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बाय, चाहो तो फॉर्मूला लिख दो, इंथैल्पी चेंज कैन बी फाउंड आउट बाय mc डेल्टा टी डिवाइडेड बाय मोल्स। ठीक है, जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला कि कैसे निकालेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, आपको अपैरेटसेस बताने थे, मेजरमेंट्स बताने थे, तो आपने सारे अपैरेटसेस बता दिए, पॉलीस्टाइरीन कप लिया, थर्मामीटर लिया, तो दैट इज इनफ, और आपने मेजरमेंट्स बता दी, फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर लिया, और मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, और वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वही बेसिकली मास ऑफ सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, और जो मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड लिया है उससे आप मोल्स निकालोगे उसके, तो जब तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन जो आएगी वो किलोजूल पर मोल में आएगी। हाँ भाई, आगे बताऊं, काफी है, आगे बढ़े। कुछ पूछना है किसी को? नहीं। चलो, the table below lists the data relevant to the formation of magnesium chloride by constructing a relevant thermochemical cycle. Use the above data to calculate the value for enthalpy change of solution for magnesium chloride. भाई इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको लैटिस एनर्जी और आपको हाइड्रेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप साइकिल बना के भी अगर आप भूल जाओ कि इसकी इक्वेशन क्या थी तो आप साइकिल बना लो। देखो आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व करोगे एक्वा साइन, तो ये सोल्यूशन है आपके पास। गैशियस साइन से आप आयनिक कंपाउंड बनाओगे,
और गैसियस आयन को पानी में डिसॉल्व करोगे तो एक्वस आयन, ये हाइड्रेशन है और ये लैटिस है। ठीक है, तो आपके पास जो इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन की इक्वेशन आती है वो ये आती है, माइनस लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पीज ऑफ ऑल दी आइंस, ये सारे आइंस की होती है। अक्सर आप सिर्फ एक आयन ऐड करते हो, इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आप, आई वुड रिकमेंड कि इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन की डायरेक्ट एक इक्वेशन याद कर लो ना, अगर नहीं हो रही तो वो बना लेना, भूल जाओ अगर। क्लियर है, निकाल लोगे यहाँ से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको निकालना है सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन आपको हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइन तो दिया हुआ है लेकिन क्लोराइड आइन गिवन नहीं है, अब क्या करोगे? एनी आइडियाज? देखो इसने ना दो अजीब सी इंथैल्पी चेंजेस दिए हुए हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में। भाई फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ये होता है कि व्हेन 1 mole ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। मैग्नीशियम की स्टैंडर्ड स्टेट Mg सॉलिड और क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 गैस, यही है ना? ये क्या होगा? इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 सॉलिड, MgCl2 की फॉर्मेशन ये गिवन है। जब आप MgCl2 को क्या कहते हैं वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसके एक्वा साइंस बनेंगे। सॉलिड MgCl2 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक्वा साइन बनेंगे, यही तो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है ना। समझ आ रही है बात? देखो मैं ये कह रहा हूँ, इसको फर्दर अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो MgCl2 एक्वस बन जाएगा। मैं आइंस अलग अलग नहीं दिख रहा है, एक साथ ही लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एक्वस। और एक्वस, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस, इसने एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। तो किसी तरह से साइकिल को रिलेट करके आप इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हो या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। कर रहे हो ट्राई या मैं बना दूं? बेटा आई एम जस्ट आस्किंग, कैन यू सॉल्व part 1? just try solving it by yourself because this question is out of the box, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इसने आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 तो मांगा है, लेकिन जो मेरी कन्वेंशनल इक्वेशन है लैटिस एनर्जी इज माइनस लैटिस प्लस हाइड्रेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, मैं उस इक्वेशन को यूज करके एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता हूँ। उसका रीजन ये है कि उसने मुझे हाइड्रेशन मैग्नीशियम आयन की तो दी हुई है, लेकिन क्लोराइड आयन की हाइड्रेशन गिवन नहीं है। तो मेरे पास दो अननोन हो जाएंगे, एक हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन और एक एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इटसेल्फ। तो ये वाली इक्वेशन तो यूज नहीं हो सकती।
लेकिन उसने हमें डाटा में दो चीजें और गिवन है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन की, चलो मैं करवाता हूँ रुको। देखो फॉर्मेशन की, मैग्नीशियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाओगे ना आप, वो इस तरह से बनाओगे, MgCl2 सॉलिड, और ये जो फॉर्म हुआ है वो अपने गैसियस साइन से फॉर्म, सॉरी स्टैंडर्ड स्टेट से फॉर्म होगा ना, Mg सॉलिड और Cl2 गैस। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ एक्वासाइंस जो दिया हुआ है उसमें, अब ये क्योंकि इसको फॉर्मेशन कह रहे हैं, तो फॉर्मेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट्स होनी चाहिए, मैग्नीशियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। समझ आई ये वाली बात? अब इसको हम एक साइकिल में कैसे लेकर आए, ये सवाल है। इसमें कॉमन क्या है दोनों इक्वेशन में? स्टैंडर्ड स्टेट्स। देखो अगर मैं इन दोनों की स्टैंडर्ड स्टेट नीचे लिखता हूँ, मैग्नीशियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, और इनकी स्टैंडर्ड स्टेट से एक बार MgCl2 एक्वस बनाते हैं यहाँ पे, तो इस वाली इंथैल्पी चेंज को उसने बोला हुआ है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एक्वस। और अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में डायरेक्टली वाटर में ऐड करूंगा, ये हमारी हो जाएगी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन ऑफ। देखो सॉलिड आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करा, एक्वा साइंस बन गया। अब ये अलग अलग नहीं लिखे मैंने एक्वा साइन, MgCl2 का एक्वस का मतलब ही यही है कि Mg2 पॉजिटिव एक्वा साइन भी बना हुआ है और क्लोराइड नेगेटिव एक्वा साइन भी बना हुआ है, मतलब इन दोनों, इनकी डायरेक्टली दोनों की मिला के गिवन है, ये सोल्यूशन हो जाएगी। और ये जो लेफ्ट वाली है, वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, ये इसकी नॉर्मल फॉर्मेशन है। अब लगाओ इसमें हैसेस लो। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में -641 है। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एक्वस जो बन रहा है वो दी हुई है -801। इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो हैसेस लॉ लगाओगे तो ये जो वाला एरो है हमारा, जो फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और हैसेस साइकिल का एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव नेगेटिव 641 प्लस फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 दिया हुआ है -801, -801 इक्वल्स इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। कितना आया ये? -160 किलो जूल पर मोल। समझ आया है सबको? बेटा ये रिवाइज करना पड़ेगा, ये सिंपल नहीं था, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस गिर सकते हैं, लेकिन आगे चलोगे तो आगे इतना मुश्किल नहीं है पार्ट, लेकिन पहले ये करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन पूछ रहा है।
ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन देखो नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है, तभी तो हम बीच में फंस रहे थे। अब ये तो निकालो, खुद ही बताओ, सोल्यूशन पता लग गई है आपको। तो कोई इक्वेशन है ना, माइनस लैटिस प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ऑल दी आयन, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन के इक्वल होता है। सोल्यूशन आपको आपने निकाला -160, लैटिस एनर्जी गिवन है -2526, और हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीशियम आयन का है -1890, और क्लोराइड आयन का आपको हाइड्रेशन इंथैल्पी निकालना है। बस एक चीज का ख्याल रखना, क्लोराइड आयन क्योंकि MgCl2 है तो यहाँ पे 2 मोल आएगा, ये मत भूलना बस। -1890 है आयशा, 1089 नहीं है। मतलब ये अगर आप हाइड्रेशन और मैग्नीशियम आयन पूछ रहे हो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये बताओ। -53, आयशा तुम्हारे आंसर क्यों गलत आते हैं बच्चे। -398 आ रहा है, मेरा भी यही आ रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन रिवाइज करोगे आप दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ द solubility of magnesium sulfate compares to that of barium sulfate. So again, he just asking you to compare or explain why solubilities of group 2 metal sulfate decreases down the group. सेम आंसर जो ऊपर लिखा था ना, वही आपने लिखना है कि डाउन द ग्रुप solubility of group 2 metal sulfate decreases, ठीक है, बिकॉज enthalpy change of solution becomes less exothermic, ठीक है, और उसका रीजन क्या है कि due to the increase in size of cation, hydration enthalpy and lattice energy both decreases, but the decrease in hydration is greater, so the enthalpy change of solution becomes less exothermic. सेम आंसर जो ऊपर लिखा था वही नीचे भी लिखा है। तो इसको लिख के आंसर चेक जरूर करना मार्किंग की से अपना। ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, कैलोरीमेट्री वाला। अगेन इसमें आपको बॉर्न हेबर साइकिल बनानी है। अब जितने भी क्वेश्चन है, ये हमारी लास्ट क्लास थी एनर्जेटिक्स की, ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप होमवर्क में ट्राई करोगे एंड मेक श्योर कि थर्सडे वाली क्लास से पहले सारे कर लो। कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, अदरवाइज हम नए चैप्टर पे चले जाएंगे थर्सडे को। ठीक है, जा सकते हो अभी आप लोग। अल्लाह हाफिज।